Children's, under this example, which one? This one. Given that f3 is onto but not 1 1, it means that every element from your this set is connected with someone. That is why this is onto. Okay, but not 1 1 means that if your domain is this one, then A is connected with 1, B is connected with 1. See, according to definition of 1 1 function, it is crystal clear that you have suppose A, B, C, D here, then they have disjoint. They have connected with different, they have to connected with different elements. But here A is connected with 1 and B is connected with 1. It means that if my A is connected with 1, so this 1 will become f of A. Okay, we know that original definition of function representation, y equal to f of x. So if x is A here, then I will get y equal to f of A. And this is in the form of 1 here. So if A is connected with 1, B is connected with 1, which is f of B. Okay, which is f of B. So both are same values, but these are different, na? A and B are different points with same connection. That is why this is onto but not 1 1. Got it? Now let's move. Let us see next example. Have you got an idea about this one? What is mean by exactly definition of 1 1? So these are images of y's under f, and these are different points. They are not same. Now let us see f4. See, again same here. If you have to check that your function is 1 1 or onto. So for onto, suppose this is your domain. There is two different numbers which are not in mapping. That is why this is not onto. And what about 1 1? A is connected with 2, B is connected with 2. These are my f of A and this is my f of B. Is it possible? F of A equal f of B, which is equal to, but here A and B are different. Got it? That is why this is neither 1 1 nor onto. So this is representation of function. How to write function? How many times? How you can represent function in different types? So verbal form. Is it no verbal form? Verbal form क्या होता है ये आपको पता है? जो हम बोलते हैं वो वर्बल फॉर्म होता है. तो वर्बल फॉर्म आउटपुट एक्सीड ट्वाइस द इनपुट बाय 1. सी वर्बल फॉर्म जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से बना है कि 2 and 5 में क्या रिलेशन है. यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलेशन बिटवीन 2 and 5, सो अगर आई एम टेकिंग ट्वाइस ऑफ 2 and adding 1, then I will get 5. If I took 3 with twice plus 1, so I will get 7. Can you see pairs as like this? If you are 4 with twice plus 1, then you will get 9. Got it? So it means that output exceeds twice the input by 1. Exceed means addition, twice means multiplication. So domain इसमें क्या है? Set of inputs. This is my domain D and this is my range. See, range is equal to codomain here, because every element present in set B is in mapping with someone under A. Got it? So domain is set of pre-images, means domain means 2 4 4 5, 2 3 4 5 be the domain and 5 7 9 11 be the range, set of range. So ordered pair XY, order pair XY
You can write your function in the form of order pair as like relation, because function is nothing but relation. So जो भी मैपिंग में है आपको उसका ऑर्डर पेयर बना सकते हो एज लाइक दिस. नाउ सी डोमेन. डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट and codomain or range be the set of second component. Here you can see easily, it's quite easy. Now see, again this is representation of function in the in the form of formula. See, by using formula we can find out, by using relation we can find out function, and relation is nothing but if I have x, I am doing twice of this, and by adding 1 I will get y, and this is nothing but relation, and this is nothing, relation is nothing but function. So rule or formula, you can write your function in the form of statement, mathematical statement as like this: y equal to f of x, and which is equal to twice x plus 1. Here this is my input, got it, and this y known as output. So f of x read as f of x or function of x. So this one. Now डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एक्स के वैल्यूज रहेंगे वो आपका डोमेन रहेगा यहाँ पे, एंड जो वाई आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 2x + 1 करके वो वाई आएगा, वो रहेगा कोडोमेन और रेंज रहेगा. नाउ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म इस टाइप में है, यू कैन सी इजीली सी द ग्राफ. मेन फोकस फॉर दिस चैप्टर इज ग्राफ and different kinds of functions. This is what is our aim for this practical, what are our weapons here. There are different types of functions, these are weapons with graph, so you have to learn this. See, we can plot our different points x axis on x axis and y axis, then we will get this kind of graph. You can plot this graph easily on graph paper. सी ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. सो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन आपको सीखना है कि कोई भी फंक्शन जो है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं ऑन ग्राफ पेपर, ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन, इन सिंपल लैंग्वेज. सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शन यू कैन मेक ग्राफ बिकॉज यू हैव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, isn't it? So let us see. See, value of a function. This is one concept which is important for your examination. This one. If you have any kind of polynomial, you know polynomial, what is meant by polynomial? If you have a0 plus a1x plus a2x square, so this is nothing but one kind of function. फंक्शन किस किस चीज़ का बनता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला लिएट, LIATE. L stand for logarithmic function, I stand for inverse of trigonometric. ट्रिगो के जो साइन कॉस टैन कॉट है उसका इन्वर्स हम लेते हैं. सपोज y इक्वल टू साइन x हमने बोला, तो इसके इन्वर्स में आता है x इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ y. सो दैट इज नोन एज इन्वर्स फंक्शन. नाउ a स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन में ये पॉलिनोमियल्स आते हैं. गॉट इट? तो जो एग्जाम्पल है दिस इज नोन एज अलजेब्रिक काइंड ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. This is in the form of quadratic also. What is meant by t? T means trigonometric functions under Lie, and e means exponential functions which are in the form of e raised to x and a raised to x. So these are few basic concepts regarding functions.
So if I have one problem, evaluate this at x equal to 7 and x equal to minus 2t. What is our aim here? See, we are doing practicals. So by using basic concept, we have to do problem. We have to solve problems. We have to apply them. So if I have x equal to 7, in general, we can write f of x. Okay. So in general, I am writing f of x equals to 2x square minus 3x plus 4. So for x, when my x is 7, then what to do here? You have to write 7 in place of x. Simple. Simple thing is that you have to write 7 where you can see x. So this is as like this. You have to replace x by 7 here when they have been given at x equal to 7. See, you can see this statement. Got it? Now after calculation, you will get your y in the form of f of 7. This is 2 into 49 minus 3 into 7, 21. Write down 21 here. Plus 4 and its addition is 81. Do this is IMP. You have to apply this in your 12th also. So you have to know this concept. कैसे substitution होता है variables का. When you have any kind of variable in the form of x, then you can replace this by particular values. See, I have this is with minus 2t, means here I have particular value for x and this is minus 2t. Now I have to replace, it's simple, I have to replace x with minus 2t here. जहाँ जहाँ पे आपको x है वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, minus 2t लेना है. So you can make this minus 2t square. Do proper calculation, then you got proper answer. Just it. Now it is 2 minus getting plus, then 4t square minus minus again plus, then 6t plus 4 as like this. So you will get this kind of. Now this is again in the form of variable t. That is why your answer is in the form of t alphabets. It's simple. You can see different kinds of solved examples. See graph, structure of graph here. If you have function in the form of g equals to minus 4 and g equals to 3, then how to plot graph? Using the graph of y equals to g of x. Find g of minus 4 and g of 3. See, you have graph. Graph is given by them. ओके अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ है तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड जी ऑफ माइनस 4. सी, अगर मैं लिखती हूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो कैन आई राइट y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स आल्सो? यस आई कैन. सो अगर y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मेरे पास है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4 है. गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है. तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे मुझे पूछा क्या है, फाइंड g ऑफ -4. फंक्शन पूछा है एट -4, तो -4 ये x की वैल्यू है, ध्यान में रखना. अगर -4 x की वैल्यू है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस विथ नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के यहाँ पे आएगा. देन फ्रॉम ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू -4, y इक्वल टू 0 at that time because my point lies on x axis. Okay, so g of -4 is equal to 0. Generally we can say that y equal to f of x, but here in place of f they have been given g of x, and here value of x is -4, and we know that if my x is on x axis, at that time my y should be 0. That is mean by my y equals to g of x. That is mean by g of -4. g of -4 is nothing but 0. g of -4 is nothing but 0. See, तो y equal to 0 जो है g of -4 की वैल्यू है, which is nothing but 0. This is one example.
Now let us check with another example. We have g of 3. So for g of 3, here value of x is 3, which is on x-axis again. You can see if x equals to 3 on graph, y equals to -5 at that time, and then g of 3 is -5. So as like this you can solve your problems. See, this is the graphical structure of function when your function f of x equals to 4. See, we know that y equal to f of x, and if its value is 4, it means your 4 lies on y-axis only, isn't it? So its graph is as like this. So question is that here from the graph below find x for which f of x इक्वल्स टू 4. x की वैल्यूज़ पूछिए क्या आएंगी जब y 4 है. तो देखिए y अगर 4 है तो x डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा. So this is your solution for this. If f of x equals to 4, that is mean by y equals to 4. Find the value of x where graph intersects line y equals to 4. तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ वो आपके x के वैल्यूज रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर ओनली. गॉट इट. सी वहाँ कहाँ पे लाइक इंटरसेक्ट कर रहा है देखिए. पैराबोला निकाला है ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. अगर आप ये ऐसे करोगे ज्वाइन तो ये ऐसे आएंगे. तो इट इज़ -1 and 3. The values are values for x are -1 and 3. See, you can see your answers for this. Open your textbook when you are solving this, then it's quite easy for you. See, these are values because these are intersection points of parabola and line. There is conic section. सी 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है. किसी ना किसी में किसी ना किसी चैप्टर का कनेक्शन होता है. तो फंक्शन में तो सब चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए. See next types of functions. These are important for your 11th standards as well as 12th standard. Okay. First one is constant function. Some basic functions, these are known as basic functions. Under this first function is called as constant function. What is mean by constant function? See, for some f of x equal to k, k belongs to r, k belongs to r. दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, मीन्स कोई भी नंबर है. तो अगर मेरा y इक्वल टू 1 है, इट मीन्स दैट लाइन पासिंग एज लाइक दिस. इफ माई y इक्वल टू 2, देन आई हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ. इफ माई y इक्वल टू f of x which is nothing but 3, then I have to make a graph through this point, graph which is passing from 3. So constant function मतलब कोई भी constant, कोई भी नंबर. आप इसमें देखा है फिजिक्स में आपने वेयर के बी द कांस्टेंट ऐसे टर्म्स आते हैं. तो एट दैट टाइम के जो है कांस्टेंट दैट इज नथिंग बट आर. के बिलोंग्स टू आर मीन्स के बी द रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर हो सकता है. यू कैन टेक this also, you can take this also, you can take this also. कोई भी नंबर आप जिसमें से लाइन पास कर सकते हो दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर कांस्टेंट फंक्शन.
graph of f of x which is equal to 2, it means that y equal to f of x, here we know that, and its value is 2, it means that it is value of y's. Are you getting my point? Now see the domain, they have been given domain and range for this particular example. सी, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये x की वैल्यूज़ क्या क्या ले रही है, हर वैल्यू के लिए ले रही है. ये लाइन कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना भी हो सकता है. सो ये हर एक x की वैल्यू को कवर करती है, इसके लिए इसका जो डोमेन है वो इन्फिनिटी का है. एंड इन्फिनिटी जब डोमेन में आता है तो वो ओपन ब्रैकेट के साथ आता है. कीप इन माइंड दिस थिंग, when your domain is in the form of infinity it should be open. and range जो है y equal to 2 है, तो range आएगा 2 obviously. okay, see the next function, identity function. This one is important for your examination point of view. Then this identity function, let us check what is meant by identity function. Write down, this is again IMP. Open your textbook and compare your things. See, if f be the function from R to R, what is mean by this? It means that your domain is your real number and codomain be also a real number. Now if you have set A is a real number, set B is a real number, then you can write f is a function from real number to real number. How to read this? F is a function from R to R, or f is a function from real number to real number. Now if you have this thing, then what is mean by identity function? So if identity function state that y equals to f of x, then you can write your f of x is equal to x. okay, so identity function, according to definition of identity function, if you have this thing, it means that this is known as identity function itself. means जो मेरे इनपुट के वैल्यूज रहेंगे वो मेरा y आएगा. I told you one example, if my x is 1, then at that time my y is 1. If these are my x and these are my f of x in the form of y's. okay, if my substituting x is 2, then I will get y 2. if I am going to substitute x is 3, then same time I am getting 3. so see the graphical structure, कैसे जा रहा है ग्राफ. मेरा x1 है तो y1 आ रहा है, x2 है तो y2 आ रहा है, x3 है तो y3 आ रहा है. फॉर दिस वन आल्सो. सो अगर मैंने ये ज्वाइन किए पॉइंट्स, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा. हैव यू सीन, एंड विच इज पासिंग फ्रॉम origin, which is passing from origin. Now domain for this is again this one. now range, see what is domain and what is range. domain क्या होता है, जो inputs होते हैं, जो मेरा suppose y equals to x एग्जाम्पल है. suppose मेरा f of x equal to x है, इसका मतलब है y equal to x. for this example x मेरा इन्फिनिटी तक जाता है यहाँ से, y भी इन्फिनिटी तक जाता है यहाँ से, तो मेरा डोमेन क्या बनेगा, r बनेगा. r मीन्स क्या, रियल नंबर्स, जो लाइन पे रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स. देन इंटीजर्स, माइनस मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो r भी आप लिख सकते हो, डोमेन में r भी लिख सकते हो, और इन्फिनिटी के साथ अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो विथ ओपन ब्रैकेट. Now see the range. How to write range for this identity function? Range indicates our output values. जो यहाँ पे line है which is passing from origin, this line values of that line are nothing but our range. तो ये भी एक कहाँ तक जाएगी, यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगी, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जाएगी.
So is that clear? So this is, make a star for this, write down IMP for this. Okay, may mark this one again. Mark this one again. Which one? Domain range for constant function. These are all basic things which are very useful to us for your future. Now see some power function and square functions. Again there are power function. Power function, what is mean by power function? X square, 3x square, 2x square, all these are kinds of power functions. See, if you have function f of x in the form of a x raised to n, f of x equal to a x raised to n, it means that value of a is any constant. Here x is variable which is in the form of x only, and in place of n you can take any natural number. Keep in mind there is condition n be a natural number. So यहाँ पे आप सिर्फ natural numbers को ही ले सकते हो, isn't it? Note that this function is multiple of n power of x. Is it clear? It's quite simple. Now square function. Square function आपको पता है जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं उनका हम स्क्वायर लेते हैं, तो उसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ इफ़ यू हैव फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f of x equals to x square. It means my y equal to f of x and which is nothing but x square. अगर ऐसा है तो when my x is 1 then 1 square is my y's which is in the form of 1. When my x is 2 then 2 square is my y and this is in the form of 4, as like this. So you can do graph for this one. Now see, there is again one function with properties. You can read properties at your own. Cube function, there is cube function. If you have x in the form of cube, ये सब चीज़ें आपने 10th स्टैंडर्ड में देखी है, बट अब हमें इसको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. एक्स स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर मीन्स आपने स्क्वायर चैप्टर देखा, स्क्वायर रूट देखा, क्यूब रूट देखा, ये सब चीज़ें आपको जो पता है वही यहाँ पे आज. पॉलिनोमियल देखा, वही चीज़ें आपको नए तरीके से यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो ये सारा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सब आपको पता है. क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं जब डिग्री 2 होता है, जब इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है, मैक्सिमम जो इंडेक्स रहता है वो 2 के फॉर्म में अगर है तो हम बोलते हैं उसको कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है. सी क्यूबिक फंक्शन ईजी है. IMP करो, आपको पता होना चाहिए क्यूबिक फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए. क्यूब आप किसका लेते हो, नेगेटिव नंबर्स का भी लेते हो, पॉजिटिव नंबर्स का भी लेते हो, तो अगर आप ग्राफ खुद से प्लॉट करोगे तो ऐसे ही आएगा. दिस इज होमवर्क फॉर यू, ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ सी द डोमेन. अगेन हियर यू कैन सी डोमेन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज ये जो वैल्यूज़ है वो इन्फिनिटी तक यू कैन स्ट्रेच. नाउ क्वाड्रेटिक फंक्शन देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन में कैसे है. क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एक्चुअली इट्स ग्राफ इज एज लाइक पैराबोला. ये जो रहता है कर्व, इसको हम बोलते हैं पैराबोला. ओके, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको अगर x की वैल्यूज डाली फॉर x इक्वल टू एच, पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो ये ऐसे ग्राफ है. सी, आप कोई भी पॉइंट एक लेते हो ना, उसके इन जनरल हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एच एंड केस. तो ये h रहते हैं वो x की वैल्यूज़ रहती है, k लेते हैं वो y की वैल्यूज़ रहती है. व्हाट इट, you can make this with domain and range. You have to see this. See, this is a polynomial function f of x equals to a0 x raised to n.
This is known as polynomial function because you have polynomial in the form of function. So these are few linear functions. Linear equation you can see, if you have single variable with x equal x plus b, then this function is known as linear function. See, these are different types of functions. You have to collect them and you have to mind them. Okay, this is your self study. You have to write down constant function with a definition. You have to write down identity function with a definition. See, cubic function is again here, properties with properties. दिस इज़ योर कोनिक सेक्शन पार्ट, जो अब तक आपको हुआ नहीं रहेगा. कोनिक सेक्शन है वो आपको अभी आइडेंटिफाई नहीं होगा, नहीं समझेगा. तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ है. फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव एफ ऑफ एक्स इज़ 4, तो कैन आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस? इट्स वैल्यू इज़ 2. सो एट दैट टाइम वी कैन टेक स्क्वायर रूट फंक्शन आल्सो. Now my today's intention, my first problem for your examination, for your practical examination is this one. Make star or IMP. See, problem is that find the domain and range of f of x where you have square root function. Here is square root function and under square root there is 9 minus x square. ऐसा वैसा square root function नहीं है वो. तो आपने सेट्स में इनइक्वालिटीज़ मैंने बताया था वन टाइम आपको कि इनइक्वालिटीज़ क्या होता है. तो इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे हमें यूज़ करना है. स्क्वायर रूट फंक्शंस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका पर्टिकुलर एक पैटर्न है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस. तो इसका अगर मुझे डोमेन एंड रेंज पूछा है तो हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज. सी हियर, मार्क दिस with IMP. f of x इक्वल टू रूट, ये मुझे लेना है बिकॉज दिया है, इज डिफाइंड फॉर. सी, अगर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है विच इज़ नथिंग बट f of x, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या मैं इसको 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको एक्स स्क्वायर में. अब मेरे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इसमें. अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर. तो ये ऐसा बन सकता है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एग्जैक्टली एज लाइक दिस. सी व्हाट टू डू हियर. सी, इफ आई हैव root of 4, it means that 4 is greater than equal to greater than 0. For particular this example, root of 4, it is greater than 0. So if I have this kind of equation or function 9 minus x square, again you can write that this is greater than equal to 0. ये 0 भी हो सकता है अगर x का वैल्यू 3 है. समझ में आया? तो if I have this kind of, then you have to write 9 minus x square greater than equal to 0. That is x square minus 9 greater than. सी, यहाँ पे अब ग्रेटर दैन का लेस दैन में कन्वर्ट हुआ. मैंने एक रूल बोला था जब हम इनइक्वालिटीज है, सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे लेस दैन 2 है, यहाँ पे लेस दैन 2 है, ऐसा है. x लाइज इन बिटवीन 2 एंड ओके, यहाँ पे -2 लो. तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, इफ़ आई वांट टू मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन हियर, तो क्या होता है? माइनस इन ब्रैकेट -2 एंड दिस लेस देन गेटिंग प्लस. अगर ये मेरा +2 हो रहा है तो वो x से ग्रेटर है ना, क्योंकि x 2 से छोटा है. तो जब ऐसे कंडीशन में रहा था, ये माइनस बन गया बाय मल्टीप्लाइंग माइनस साइन, अगेन ये कन्वर्ट होगा ग्रेटर में, -x इज़ ग्रेटर देन, अब ये -2 होगा. सो ये +2 हुआ, ये -x ग्रेटर देन -2. सी, मीनिंग इज सेम. हमें मीनिंग सेम रखना है, जो ओरिजिनल हमारा स्टेटमेंट है उसका मीनिंग सेम रखना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं सब साइड्स को इनइक्वालिटीज़ में, तब जब
लेस देन इक्वल टू है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन में कन्वर्ट होता है। सी कीप इन माइंड दिस थिंग ना। मेरे पास अब ये चीज़ है तो इससे मैं ये बना सकती हूँ, एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंबल अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग होगा। आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में है तो आपको आंसर ही पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, एंड जो भी आपका रेंज आएगा वो। सो टू फाइंड द रेंज लेट दिस वन। अब ये रेंज फाइंड करने के पहले डोमेन क्या आया, डोमेन मुझे निकालना है, तो डोमेन क्या आएगा। अब ये जो है सी, मैंने बोला था कि ये नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करोगे तो उसके जो पॉइंट्स है आपको सिर्फ देखना है कि ये 0 कब हो रहा है। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है, सो देयरफॉर डोमेन क्या है इसका, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट x-3 है, तो ये 3 - 3 करे तो 0 हो रहा है, और ये -3 + 3 करे तो 0 हो रहा है। इसमें छोटा कौन है, -3 है। हमने डेफिनेशन में देखा था ना इंटरवल्स की कि a इज़ लेस देन b, तो -3 इज़ लेस देन 3 चाहिए। इसके लिए इसका डोमेन क्या आता है, -3, 3 विथ क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, कीप इन माइंड -3 and 3 आर इंक्लूडेड हियर। नाउ टू फाइंड द रेंज, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे क्या करना है, सिंस स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहता है, तो अगर स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहता है तो सिंस स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मेरा ये f(x) है वो y के फॉर्म में रहता है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इसको रेंज जब बनाना है तो इसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल के फॉर्म में। वह कैसे देखते हैं हम, ऑल्सो ऑन स्क्वेयरिंग वी गेट। अब दोनों साइड को स्क्वायर करो। सी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर गेट कैंसल, देन दिस वन इज रिमेनिंग 9 - x square and y is in the form of square we got. Then since what, this one, since my x lies in between, there is print mistake, here is -3. Since my x lies in between -3 less than equal to x less than equals to 3, that is x square, स्क्वायर कहाँ पे लाई करेगा, लेस देन 0 लेस देन 9। स्क्वायर के वैल्यूज़ निगेटिव होते हैं क्या, कभी नहीं। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, सब साइड का स्क्वायर किया, तो क्या बनेगा, अब ये सब साइड का स्क्वायर करना है, सब साइड का स्क्वायर करना है, तो ये -3 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। बट अगर स्क्वायर वैल्यूज़ मुझे पता है तो मुझे ये चीज़ पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं रहते हैं, तो -3 को आपको कन्वर्ट करना है 0 में। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस साइन को यहाँ पे कॉमन निकला है, माइनस से इंटू किया है, माइनस से इंटू करो तो -0 ही आता है, तो 0 ही लिखेंगे। देन ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया, एंड ये -x², और अगेन ये -9 हो रहा है विच इज़ लेस देन -x², तो यहाँ पे भी साइन चेंज किया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा, 9, यहाँ पे 9 चाहिए मुझे, 9 - x²। तो 9 - x² करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 9 को। तो 0 + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 9। तो ये 9 बना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - x² बना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये ऐसे बनेगा। अब ये 0 यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - x² लिखा है, और 0 को किस फॉर्म में लिखा है, 9 - 9 के फॉर्म में लिखा है, तो आगे वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऊपर क्या है। हाँ, ये ऊपर 0 दिया उन्होंने। सी दिस वन इज 0। अब मुझे रूट चाहिए, अब रूट चाहिए तो मैं स्क्वायर रूट करती हूँ सब साइड में, तो 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 आएगा, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज़, स्क्वायर रूट में लेंगे मिडल टर्म, एंड ग्रेटर देन 0। ना ये 3 आया, ये 0 आया, कौन सा छोटा है बाबा, 0 छोटा है। 0 लेफ्ट साइड में लिखो, राइट साइड में 3 लिखो, एंड इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। तो अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल है तो मुझे पूछा है डोमेन एंड रेंज,
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन क्या आया, डोमेन इज -3, हियर एंड रेंज इज क्लोज्ड ब्रैकेट 0, 3। तो डोमेन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स के जो वैल्यूज़ रहेंगे वो डोमेन के रहेंगे, एंड वाई जो रहेगा, वाई क्या रहेगा, ये पूरा, एक्स क्या रहेगा, ये इतना, समझे आप, एज लाइक दिस। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर योर प्रैक्टिकल सेशन. You can see different kinds of examples, no need to take everything. See rational function, rational, what is mean by rational number पता है, p by q, where q is not 0, then you can say that your given function is rational function, as like this simple है, कोई भी f of x अगर रैशनल फंक्शन सपोज 1/3 है, 1/5 है, ये क्या है, रैशनल फंक्शन, 1/x² है, क्या है, रैशनल फंक्शन, 1/3x² + 1 है, ये क्या है, रैशनल फंक्शन, एज लाइक दिस. सो रैशनल फंक्शन है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसका ग्राफ दिया है, कैसे ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, यू कैन सी. नाउ डोमेन इज लाइक दिस. सी, जब आपका डोमेन आपको निकालना है तो यहाँ पे दिया है r-0. इट मीन्स दैट योर डोमेन इज योर रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0. r में से 0 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आपका डोमेन है. बिकॉज 1/x में x डिनोमिनेटर है जो कि 0 नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शन. गॉट इट. नाउ व्हाट अबाउट रेंज. रेंज इज अगेन r-0. इट मीन्स रियल नंबर में से अगर 0, देखिए अगर यहाँ पे आप ग्राफ दिख रहा है तो 0 से कितना दूर है ग्राफ, 0 है क्या इंक्लूडिंग वहाँ पे रेंज में, नहीं है, तो r-0. तो सी, यहाँ पे इनपुट में भी 0 नहीं आएगा एंड आउटपुट में भी 0 नहीं आएगा. x की वैल्यूज़ अगर आप रखते जाओगे तो देखिए ये 0 की वैल्यू ली नहीं है, सिर्फ लिया है ज़ीरोज़ को छोड़ के. तो 0 क्यों नहीं लेते हम, क्योंकि वो रैशनल नंबर है, इसके लिए. नाउ डोमेन रेंज, ये समझ में आया. फाइंड द डोमेन रेंज, ये करके देखिए जो सॉल्व एग्जांपल से, फॉर योर नॉलेज यू कैन प्रिपेयर दिस. नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e⁻x और a⁻x, ये दो डिफरेंट टाइप्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. उसमें a⁻x में जो a रहता है वो कांस्टेंट नंबर रहता है, कोई भी 3⁻x, 5⁻x. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ a⁻x ओनली. e⁻x ही रहता है एवर, फॉर एवर. नाउ 3⁻x, 5⁻x, देन अगेन यू कैन टेक 10⁻x, 1000⁻x, 1,00,000⁻x. there are different values for a here. So a is variable with constant, तो नंबर है चेंज होते रहता है. सो ग्राफ यहाँ पे दिया है फॉर f(x) इक्वल्स टू 2⁻x एंड -2⁻x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज़. यहाँ पे ग्राफ को मेंशन किया है. यू कैन सी डोमेन. सी, डोमेन को यहाँ पे दिया है. डोमेन के बारे में बताती हूँ. डोमेन जो है रियल नंबर से, क्योंकि इनपुट जो है सब एक्स एक्सिस पे लाई करता है. यहाँ पे 2⁻0 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 2⁻0 की वैल्यू 1 होती है, इजंट इट. देखिए यहाँ पे 1 प्लॉट किया है व्हेन योर एक्स इज 0, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफ का एक्चुअली 1 फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़. तो ये जो वैल्यूज़ है ये कैसे आते हैं. See, exponential function is nothing but if your y equal to e⁻x or a⁻x. Keep in mind this thing, a⁻x. See, you can see example for a⁻x. If your y is equal to 2⁻x, it means that your value of a is 2 here. If your y equals to 2⁻x, it means that your value is again here 2 for a, for negative values. Okay, I am talking about range here. See,
range for this is 0 to infinity. You can see 0 is excluding here when you are plotting values. सो ग्राफ कहाँ से जा रहा है? 0 से दूर जा रहा है, 1 से ग्राफ जा रहा है. अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ही 0 एक्सक्लूड रहेगा, अदरवाइज 0 इंक्लूड रहेगा. ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंक्लूड रहेगा, अदरवाइज एक्सक्लूड रहेगा. See, there are few properties for examination. No need to prepare properties and graphs. जो एग्जाम्पल मैंने रूट का लिया है वो आपको प्रिपेयर करना है. सी लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम एक रिप्रेजेंटेशन है. सी इफ यू हैव 2⁻³ इक्वल टू क्या आता है? 2 × 4, 4 × 8 ऐसे आता है. ओके, तो यू कैन कंपेयर दिस थिंग विथ दिस. देन वैल्यू ऑफ ए इज 2 here, value of y is 3 here, value of x is 8 here. Now how to write this? In place of y you can write 3 equal to log. In place of a there is 2 and in place of x there is 8. So how to write this? If a is greater than 0, it means that if 2 is greater than 0, a is not equal to 1, 2 is not equal to 1, then the logarithmic function log of x to the base 2, log of x to the base 2, log of 8 to the base 2, which is nothing but 3. So this is value of y here. So this is mathematical statement for logarithmic function. Y equal to log of x to the base a. How to read this? Y equal log of x to the base a. लॉग टेबल नाम का एक बुक है छोटा, आपने देखा रहेगा, फिजिक्स प्रैक्टिकल में यूज़ होता है जनरली वो. तो उसमें लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम दिए हुए रहते हैं. आपके अगर कोई एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर्स है तो उनको पूछो व्हाट इज़ मीन बाय लॉग टेबल. तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं उसमें. सी you can see videos on YouTube regarding this logarithm, so you can take information, brief information, because previous पोर्शन जो था लास्ट ईयर तक का, तो वहाँ पे लॉगरिथम सेपरेट चैप्टर था मैथ्स में. यहाँ पे आपके पोर्शन में लॉगरिथम चैप्टर हटाया है. तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम के वो आपको क्लियर करने हैं यहाँ पे. तो ये जो दो डिफरेंट इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज में दिया है, दिस इज़ नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मीन्स हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया है. सी इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a अगर है तो a रेस टू y विच वैल्यू इज़ x, a रेस टू y विच वैल्यू इज़ x. अगर आपके पास ये है तो आप ये बना सकते हो, अगर आपके पास ये है तो आप ये बना सकते हो, वाइस वर्सा. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2⁻² इज़ 4, तो हाउ टू कन्वर्ट दिस. और 2⁻³ मैंने अभी जो लिया इज़ 8. हाउ टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ लॉग. क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा? जो इंडेक्स में रहता है वो y का वैल्यू आता है. सो 3 इक्वल टू लॉग के साथ x का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो लॉग ऑफ x से. x कहाँ है? यहाँ पे 8. लॉग ऑफ 8 टू द बेस a का वैल्यू क्या है? जो बेस है y का 2. You can make this, and if you have this thing then you can make this. 2⁻³ is 8. See, these are properties. These are important properties. This is again IMP. Logarithm is always IMP concept. See, अब log, सपोज मेरे पास log ऑफ x है, log ऑफ y है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y. इसको मैं दो डिफरेंट लॉग्स को ऐड कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ एज लाइक अलजेब्रा. log ऑफ x ओवर log ऑफ y एज लाइक दिस. बट इसके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज क्या है देखिए यहाँ पे.
log of bc to the base a, which is equal to b and c are in multiplication. So you can separate this by addition. Log of b to the base a plus log of c to the base a. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब यहाँ पे लॉग के साथ दो नंबर्स प्रोडक्ट में है तो जब उसको सेपरेट करोगे लॉग के साथ तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता है. ये प्रॉपर्टी है इसका, प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम इसको बोलते हैं. ये आईएमपी है. करो इसको. देन मल्टीप्लिकेशन का हो गया. अब दो नंबर से लॉग के साथ b बाय c, तो जब डिवीजन है तब ये सब्सट्रैक्शन होता है. ये चीज़ ध्यान में रखना. मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन होता है दो डिफरेंट लॉगरिथमिक वैल्यूज़ का. एंड अगर ऐसा है, क्या क्या ध्यान में रखना है आपको? दिस वन सब ये प्रॉपर्टीज आईएमपी है. क्वोशंट रूल है ये, क्वोशंट रूल ऑफ लॉगरिथम. देन इसका क्या मीनिंग है? सी, इफ़ आई हैव लॉग ऑफ m रेज टू n, अगर ऐसा है लॉग ऑफ m रेज टू n विथ बेस a, तो यू कैन राइट दिस इज, ये n है लॉग के बाहर आता है, n log ऑफ m टू द बेस a. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉपर्टीज. सो यू हैव टू मार्क दिस वन in the form of IMP. All are IMP. This is again IMP. See here is few examples by using properties how to solve. C, log of 72, इसको 72 को स्प्लिट किया है किस फॉर्म में? देन इसको मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में स्प्लिट किया है. दिखाई दे रहा है आपको? 72 को स्प्लिट किया है 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर में. देन 2⁻³ को एंड 3 स्क्वायर को सेपरेट किया है. देन अगेन वहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की है. सी, लॉग ऑफ 72 एक नंबर है, 72 जो लॉग के साथ है, तो इसको 72 को ऐसे अरेंज किया है कि 2⁻³ मीन्स 8 एंड 3⁻² मीन्स 9. 8 9 जा 72. तो अगर ये इसका पहला स्टेप ये भी आ सकता है, लॉग ऑफ 8 इंटू 9 ऐसे आ सकता है. देन 8 को आप लिख सकते हो 2⁻³, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसको सेपरेट करो बाय एडिशन. 2⁻³ एंड लॉग ऑफ 3 स्क्वायर. अब ऐड हो गए. यहाँ पे क्यूब है तो m⁻n का रूल फॉलो होगा, तो 3 बाहर आएगा लॉग के साथ. 3 log of 2 प्लस 2 log of 3. गॉट इट? दिस इज नोन एज पावर रूल. तो लॉगरिथमिक फंक्शन अगर मुझे लिखना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, दिस इज सिंपल ना, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. करो आईएमपी. जो भी आईएमपी पॉइंट्स है आपको एग्जाम के लिए लर्न करने हैं. So if you have y equal to f of x which is equal to log of x, it means that this function is known as logarithmic function. So if you have log of 2, this is logarithmic function. If you have log of 3, this is logarithmic function. Okay. You can do for division also. Do the practice at home. For this is important. सी, अगर ऐसा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ये दिया है, क्या नहीं कर सकते हो ये भी आपको लर्न करना है लॉग में. नाउ दिस वन, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर 12th पॉइंट ऑफ व्यू. जो डोमेन एंड रेंज हम लिखते हैं उसका ऐसा चार्ट बनाते हैं. सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री आएगा यहाँ पे. तो लॉगरिथम के साथ यहाँ पे कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कॉस टैन, यू कैन राइट y इक्वल टू साइन एक्स. अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है, इट मीन्स दैट दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली. इफ़ यू हैव y इक्वल टू टैन एक्स, इट मीन्स दैट दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली विथ y इक्वल टू टैन एक्स. तो इसके हर किसी के डोमेन एंड रेंज है. ये कहाँ से डिसाइड होता है? बाय ग्राफ. तो ये फंक्शंस का हर एक फंक्शन का ग्राफ है, आइडेंटिक यूनिक ग्राफ है. कि अगर मेरे पास यहाँ पे साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा है. यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज रहता है -1 एंड 1. जो कोडोमेन रहेगा,
कोडोमेन रहेगा 1 एंड -1 एंड उसके बीच में ही रेंज रहेंगे। तो यहाँ पे दिया है देखो, डोमेन दिया है रियल नंबर, तो डोमेन अगर मेरा एक्स एक्सिस है तो वो रियल नंबर तक ही जाएगा। समझ में आ रही बात? 1 2 3, यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी। साइन फंक्शन के बारे में बात करी मैं, साइन ऑफ एक्स, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है तो उसका ग्राफ कैसे आता है मैं बोल रही हूँ। तो साइन 0 0 होता है, साइन π/2, ये जो वैल्यूज़ है ऐसे 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 आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, बट वो कहाँ पे लाई करेंगे? जो रेंज है -1 to 1 के बीच में आएगा। रेंज कहाँ पे लाई करता है? वाई एक्सिस। जब एक्स वाई प्लेन है तो डोमेन एक्स एक्सिस पे लाई करता है, रेंज वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, और ये जो चीज़ दी है tan r माइनस दिस वन, सी tan का जो ग्राफ अगर आप देखोगे तो tan का ग्राफ ना कुछ ऐसे है। तो ये जो वैल्यूज़ है इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट वो कहाँ कहाँ पे नहीं ले सकते हम, कहाँ कहाँ पे वो नहीं आ सकते। r माइनस ये वैल्यूज़ छोड़ के सब आर रियल नंबर्स के लिए tan की वैल्यूज़ सेटिस्फाइड होगी, और tan का रेंज जो है वो रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो इस फॉर्म में होता है, तो ये ऊपर किधर भी जा सकता है। डोमेन में रेस्ट्रिक्शन है tan के, रेंज रियल नंबर है। सी एक्सरसाइज हम नहीं, पूरा एक्सरसाइज हम प्रैक्टिकल में नहीं ले रहे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो हमें लेने हैं। अब देखिए ये चेक करना है, अगर मुझे ये चेक करना है इज इट फंक्शन और नॉट, तो आप ये खुद आइडेंटिफाई करो। अब एक एग्जांपल देती हूँ, ये कौन फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन तो दिख रहा है, बट 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन हो सकता है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर ये ए है डोमेन, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट जुड़ा है किसी ना किसी सेट के साथ, और ऐसा है 2, -3, ये चेक करना है आपको। 1, 1, 0, 2, -1, 1, -2, 5, यहाँ पे रिपीटेशन है, बट यहाँ पे x के वैल्यूज़ में रिपीटेशन नहीं है, तो दिस इज़ फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब आप करोगे p, a आएगा, देन q, c आएगा, देन r, d आएगा, r, b भी है, r, d भी है, s, e भी है। एट दैट टाइम देखो यहाँ पे r रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, छोड़ो इसको। ये चेक करो, आप एक्सरसाइज खुद करो। अब जो मुझे प्रॉब्लम्स लेने थे वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद इन अ मिनट। जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल में मुझे आपको बोलने हैं वो प्रॉब्लम तो एक मैंने बताया रूट का है, दिस वन, मेक अ स्टार फॉर दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ये जो प्रॉब्लम है आपके पास है ऑन पेज नंबर 113। यू हैव टू राइट दिस प्रॉब्लम विथ सोल्यूशन फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको डोमेन रेंज एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो ये डोमेन है, उसका रेंज जो है ये रेंज है, दोनों भी क्लोज्ड ब्रैकेट है, कीप इन माइंड दिस थिंग। और सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछना है कॉम्पोजिट फंक्शन। सी नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, अलजेब्रा फंक्शंस, ये चीज़ है अलजेब्रा फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा फंक्शंस में क्या होता है, अगर मेरे पास दो डिफरेंट फंक्शंस है तो उसको मैं ऐड कर सकती हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। और ये जो है वो है कंपोजिट फंक्शन, मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x का वैल्यू है मेरा, और ये पूरा जो है वो y का वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ नोन एज कंपोजिट फंक्शन। तो ये मुझे बताना है आपको, इसके ऊपर प्रॉब्लम मैं डालने वाली हूँ एग्जाम में। तो कंपोजिट फंक्शन जो रहता है, देखिए एडिशन, दो फंक्शन का आप ऐड कर सकते हो, दो फंक्शन को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, देन प्रोडक्ट भी कर सकते हो, दो फंक्शन के बीच में डिवीजन भी कर सकते हो। दिस इज़ नोन एज अलजेब्रा बेसिकली। तो ये एग्जांपल्स आप सर्च करो, खुद ट्राई करो। अब मुझे बताना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। सी कम टू द पॉइंट, composition, this is last part of this chapter, composition।
See how to represent composition of functions, a method of combining the function. This is nothing but combination. If I have two different functions, then you have to combine them. See, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स अगर मैंने लिखा तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है कौन से फंक्शंस का, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू ई रेस टू एक्स. मेरे पास दो डिफरेंट फंक्शंस, अगर मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने ऐसा लिखा y इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया. तो इफ आई हैव f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b and g is function from b to c. यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे एक सेट है. सो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ओके. एंड b टू c के लिए मैंने दूसरा फंक्शन का नाम दिया g. तो मुझे दिखाना है कि उसका जो कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा लिखते हैं, वो क्या है, a is function from this is function from a to c, ये दिखाना है. गेटिंग माई पॉइंट. अगर f is a function from a to b है, f is a function from a to b and g is function from b to c, then f composite with g is a function from a to c, ये दिखाना है. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंडा फॉलो करना पड़ेगा. f composed with g, हाउ टू रीड दिस, f ज़ीरो की तरह यहाँ पे निकालते हैं हम. g दो फंक्शंस को कंबाइन किया विथ वेरिएबल x, एंड इसको हम कैसे लिखेंगे, f को बाहर लिखेंगे और g को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे. एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा इसका. सी, आई टोल्ड यू फॉर योर information as like this. I have to show you, if a is function of b, b is function of c, then a is function of c. You can show this is with like this, g of the domain of g of is the set of all x in a such that, see यहाँ पे ये डोमेन है, ये दो फंक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये डोमेन है, ये को डोमेन है. अगर ये दो फंक्शन की बात कर रही हूँ तो ये डोमेन है, ये को डोमेन है. एंड अगर ये दो फंक्शन की बात कर रही हूँ तो ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ओके. तो जब आपका इस फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या लिखना है, जी ऑफ एफ लिखना है. जी ऑफ एफ, जी सेकेंड फंक्शन है एंड फर्स्ट फंक्शन एफ है आपका. दो डिफरेंट फंक्शन है आपके पास, जी का प्लेस सेकेंड है, एफ का फर्स्ट है. तो आपको जी आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिखना है एंड एफ इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट, ऐसे. तो डोमेन ऑफ दिस वन क्या आएगा एंड रेंज क्या आएगा, यहाँ पे दिया है. सी एग्जांपल्स देखेंगे इसके. एग्जांपल से आप आसानी से समझ पाओगे. सी, अब यहाँ पे ऐसा दिया है, अगर मेरे पास ऐसा है तो मुझे क्या लिखना है, f बाहर लिखना है, g को अंदर डालना है. समझ में आई बात. अगर मेरे पास ऐसा है तो g को बाहर एंड f को अंदर डालना है. गॉट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे दिया है, दोनों निकालना है, दोनों पूछा है, एक x के लिए पूछा है और एक वैल्यू दिया है, पर्टिकुलर x का वैल्यू जब 3 है. तो सी, जब हम ये निकाल रहे फर्स्ट वन, तो क्या किया है, ये जो मैंने लिखा है वो लिखा है. एंड एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन मुझे दिया है वो रैशनल फंक्शन है. तो रैशनल फंक्शन में एक्स की जगह मुझे क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है. मेरे पास दो फंक्शंस है, एक मिनट. आई हैव एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ 2 ओवर एक्स प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये दो है मेरे पास. और अगर मुझे ऐसा निकालना है, कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है एफ ऑफ जी का, एफ ऑफ जी, हाउ टू रीड दिस, एफ ऑफ जी. तो ये ऐसे आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब जी का जो वैल्यू है वो वहाँ पे मुझे पुट करना है इन प्लेस ऑफ जी ऑफ एक्स. अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया. तो
तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जो बन गया ना, तो एक्स ये मेरा क्या है, एक्स है। तो जहाँ पे मेरे पास एक्स है, जहाँ पे मेरे पास ये है एक्स है, वहाँ पे मुझे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये क्या बनेगा, 2 डिनोमिनेटर में एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन सी प्लस 5, यू कैन सी दिस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, गॉट इट। इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तो ये आपको ये समझ में आएगा, डू योर सेल्फ। सो इस टाइप का एक एग्जाम्पल मुझे लेना है, देन मेरा प्रैक्टिकल जो है वो वाइंड अप होगा। तो लेट अस डू वन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है, शो करना है। ओके, ये कुछ आगे फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है वो बताती हूँ। मॉडुलस फंक्शन सिग्नम, सी यहाँ पे जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर है आपको, जो नेक्स्ट इसमें डिफरेंशिएशन का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें मैं लेने वाली हूँ। तो जब आप ग्राफ बनाते हो विदाउट लेफ्टिंग पेन, कोई भी अगर ग्राफ बनता है आपका तो वो कंटिन्यूअस रहता है, फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। एंड अगर इस टाइप का ग्राफ आपका बन रहा है, मीन्स आपको जब आप वैल्यूज प्लॉट कर रहे हो तो पेन को उठाना पड़ रहा है, तब वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। सी यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। एक यहाँ पे आ रहे वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो ब्रेक हो रहा है बीच में, दैट इज़ नोन एज डिसकंटिन्यूअस। चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। सी दिस इज़ नोन एज मॉडुलस फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस क्या होता है। सी मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए। सी ग्राफ है, ग्राफ में आप क्या लिखते हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखते हो। ओके, तो भले वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो, भले वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, आप उसको मॉड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। पर्टिकुलर वैल्यू का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट डिस्टेंस है। तो भले मेरे पास -1 है तो उसका डिस्टेंस 1 यूनिट ही होगा। तो ये होता है कि एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है मॉडुलस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू प्लस ही आएगा, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो। तो सपोज़ मैंने लिखा मॉड ऑफ -1 तो ये आएगा 1। सपोज़ मैंने लिखा मॉड ऑफ 2 तो ये आएगा 2, एज लाइक दिस। तो 0 ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट। इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, लाइक दिस। So this is domain and range. You can see again intervals here. Some part is for your preparation, do yourself. Greatest integer function. So again these are few kinds of integers. C, ये जो है CD दिख रही है, ग्राफ कैसे है, CD एज लाइक स्टेयर्स। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस जो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। तो थोड़ा इससे ये लर्न करना है, भले स्पेशल जो बच्चे जेई वगैरह देने वाले हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू MCQs ऑन द बेसिस ऑफ टोटल दिस जो भी आज मैंने पढ़ाया। तो ये जो एग्जांपल है मैं लेने वाली हूँ, वेट अ मिनट। See, here is one question. This is your first question for your MCQs. The domain and the range of f of x is equal to root of 9 minus x square. 9 minus x square is what? So correct answer is A, and proof for this is given in textbook. It means this is solved example from textbooks. Now second example is that if f is a function from A to B and g is function from B to C are 1 functions, then g of f from A to C is 1. We have to show this. See, according to definition of 1 here, definition, if you have two functions A B as like this, then according to definition, if your f of A equal f of B, this implies that A equal B. It means that this is your f of A.
This is your f of b, where your a is here, b is here. Got it? तो f of a and f of b अगर इक्वल है मीन्स सेम है, तो ही ए एंड बी के वैल्यू सेम है. मीन्स ए एंड बी अगर सेम है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम होने चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए. देन दिस इज नोन एज 1 1. So by using this concept we are going to solve our problem. So here write down, you have to solve this problem with me. So by using this 1 1 function, definition of 1 1 function, write down if f is a function from a to b and g is function from b to c are 1 1 functions, then g of f is a to c is 1 1 only. So proof is here. Let us see. As f is a function from a to b and g is a function from b to c, these are given things are 1 1. Already they are 1 1. It means they are distinct images in distinct domain and codomain. Okay, if they are 1 1, then their product is 1 1. G dot f is 1 1. So let us check. Let with definition, let g of f of x1 which is equals to g of f of x2. See, you can write this is in the form of like this, g of f of x1 equal to g of f of x2. This is quite difficult to understand, but when you are doing practice it's easy. But g be the mapping from b to c is 1 1 function. We have to follow definition of 1 1 function here as like this. Okay, so अगर g be the function from b to c है तो f of x1 equals to f of x2. सी कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए पूछा है हमें. यहाँ सो कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए पूछा है, इसके लिए यहाँ पे ये ऐसा आया है. अगर सिंगल रहता है तो क्या आता है, ऐसा आता है. so, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स. फॉर योर इंफॉर्मेशन बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स टू. एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ ए है. एंड एफ ऑफ बी क्या है, ये एफ ऑफ बी है. गेटिंग माई पॉइंट. ओके, now done it, let us move ahead. And g, done it for g. Let us see for f. F is a function from a to b is 1 1 given. This is given thing is 1 1 function. Therefore x1 equal to x2. If g is 1 1, if f is 1 1, then product between them is again 1 1. Therefore g dot f of x1 equal to g dot f of x2. If is this, then you can write again this one. Therefore product between them, composition between them, you have to write also this. You can write this in place of this dot. Write down as like O or 0. This is the proper structure or representation of composite function. So if I have this thing, then I can write g of x1 which is equals to g of x2. Again here this is my a, this is my b, this is my f of a, this is my f of b. You can compare your original definition with them.
Now if is this, then as f is 1 1. First of all, we have to represent g is 1 1, then f is 1 1, and f is 1 1. F of x1 equal to f of x2. This implies that x1 equal x2. Here this is my b, this is my a, this is my f of b, this is my f of a. Got it? Therefore x1 equal x2 as g is 1 1. Composition of this one is equal to composition of this one. Therefore x1 equal x2. सिर्फ डेफिनेशन में उतना ही है composition. Therefore g of f is 1 1. See, this is your exercise problem. What is the value of log of root 96? Here is root, okay, with particular values of log of 2 equal to a and log of 3 equals to b. So let us start how to write down this. First of all, you have to write log of root of 96. Then we have seen one kind of problem. You have to split 96. Before splitting this, you have to write root in the form of half, because there is rule, formula according to power, log of m raised to n, which is equals to n log m. By using this formula, index or power rule, we have, therefore log of root of 96 is equal to, if you are comparing this thing, then value of n is half. So write down here half log of 96. Then I have to split this 96 in the form of as like this, log of root of 96, which is equals to half. See, I am dividing this in the form of 8 into 12. Okay, because I want to show this result. Its value is half and 5a plus b. So my a is log of 2. So here I want 5 log of 2 and my b is log of 3. So I want log of 3. So in the form of 2 and 3 only I want to convert this 96. So you can write this. Now you have to split this as like this. See, we have 5 in our solution. We have 5 in our solution. So if I am getting 2 raised to 5, then this 5 आगे आएगा. Okay. So write down this. Half of log of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So half of log of 2 raised to 5 into 3, which is equals to half of log of 2 raised to 5. See, here is product. You have to convert this in the form of addition and write down whole thing as it is. This one. Now again I am using, okay, यहाँ पे लिखे since log of m into n is equal to log of m plus log of n. We have this rule. By using this rule, we got this step. Okay, now again by index rule, half into this 5, यहाँ पे आएगा log of 2 plus half log of 3. Now this is half is common, take outside of the this 5, log 2 plus log 3, and we know that
log 2 and log 3 are in the form of a and b, so 5a plus b. This is your solution for log of root of 96. ठीक है. Now I am writing another. See students, there are 10 questions for your preparation, for your theory as well as practical preparation from functions. Let us see from first. I told you about first. This is solved example from your textbook on page number 113. Question 2 is this one. If you have two different functions and then its composition or combination is again one function, and here is in front of you there is proof for this. Question 3 is regarding log of root of 96. Its value is half of 5a plus b. Proof is again here in front of you. See, now question 4 and onwards, these are from concepts, basic concepts जो मैंने अभी पढ़ाए हैं. If f of x equals to log of x, then obviously it is logarithmic function. F of x equals to 2. I told you, if you have any kind of constant, any kind of number in the form of function, then this is known as constant function. See, is it function or not? You have to observe this set A, set B. Suppose these are two sets and this is relation R, then each and every element from set A is connected with B. So it is function. So question 7, if f of x equals to a raised to x is an exponential function, here you can write this, or okay, you have to take e raised to x, no problem. Write down e raised to x in place of a raised to x. So if f of x equals to ax plus b, then this is known as linear function. And the structure of graph of identity function. Structure of graph of identity function. Identity function I told you, y equal to x. This is identity function and its graph is as like this, which is passing from origin and which is straight line. This is not parabola. Parabola means as like this, as like this. These are parabolas. So our graphical structure of identity function is straight line. So if f of x equals to 2x square minus 3x plus 4 at x equal to 7, then f of 7, you have to substitute value of x is 7 here and find out your value, and it is 81. Okay, thank you students. This is our practical on the basis of functions. We will see in next practical with a difference.